آج سحپہر پاکستان میں معزز مہمان ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی آمد ہوئی، پرتپاک استقبال کیا گیا اور اب تک صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسلام آباد کا یہ دورہ صرف سفارتی نہیں بلکہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے اور اس کے لیے پاکستان کا انتخاب ایک اہم سیاسی پیغام رکھتا ہے۔ ایرانی صدر کے استقبال میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام کی موجودگی نے اس دورے کو ریاستی سطح پر غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد تکنیکی مذاکرات اور معاہدے کے مراحل آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان رابطوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو پھر ایران نے سب سے پہلے اسلام آباد کو کیوں منتخب کیا؟ کیا پاکستان اب بھی ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یا پھر تہران کو اب بھی خطے میں کسی ایسے قابل اعتماد شراکت دار کی ضرورت ہے جو امریکی اور اسرائیلی دباؤ کے باوجود توازن برقرار رکھ سکے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کیا ایران کو عرب ممالک، خاص طور پر قطر یا دیگر خلیجی ریاستوں سے وہ سفارتی یقین دہانیاں حاصل نہیں ہو رہی جو وہ اسلام آباد سے تلاش کر رہا ہے؟ ایرانی صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دورہ صرف علامتی نہیں بلکہ عملی نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ایران اس دورے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ صرف شکریہ ہے یا نئے علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کی تلاش؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ دورہ طاقت کے نئے توازن کی ابتدا ہے یا صرف وقتی سفارتی گرم جوشی؟ اس دورے پر نہ صرف خطے بلکہ امریکہ، اسرائیل اور عرب دنیا کی نظریں بھی ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے نتائج مستقبل کی جیو پولیٹیکل سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس دورے کی اہمیت، مقاصد، اسی پر گفتگو رکھیں گے پروگرام میں۔ پینل میں میرے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پاکستان کا شکریہ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان، سفارتی آداب کا تقاضا یا تہران اسلام آباد کو نئی اسٹریٹجک ضرورت کے طور پر دیکھنے لگا؟ شہزاد چودھری صاحب، سفارتی تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں، معاملات آگے بھی لے جاتے ہیں اور پیچھے بھی۔ رائٹ ناؤ پاکستان ایران کے معاملات جس جگہ پر ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک شکریہ کے لیے ایرانی صدر کا دورہ ہے کہ یہاں سے آگے اور بہت کچھ روشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اظہار تشکر ہے اور ڈپلومیٹک نائسٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا جو رول رہا ہے اس میں کوئی بالکل کسی قسم کا کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان نے تقریباً ایران کے بہاف پہ یہ سارے کا سارا جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ جو بات چیت تھی، اس کے اندر ایک طرح سے ایران کے ساتھ کا ساتھی ہو کے یہ سارا کام نبھایا ہے۔ ایران کو اس طرح کی سپورٹ پاکستان سے شاید کبھی بھی نہ ملی ہو پہلے۔ ایون وہ جو جب تھے یہاں پہ شاہ آف ایران کے زمانے میں بھی ایسی نہ ملی ہو جس قسم کی اس پر سپورٹ ان کو اس دفعہ ملی ہے۔ یہ یقیناً ایک یونیک اور بہت ہی نادر قسم کی چیز ہے جو کہ پاکستان نے ایران کے لیے کی ہے۔ اس کے اظہار میں اگر ایرانی صدر آتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن آپ کا سوال یہ کہتا ہے کہ کیا تہران اسلام آباد کو ایک نئی اسٹریٹجک ضرورت کے طور پر دیکھنے لگا؟ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک مخفی پہلو چھوٹا سا، اور لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نان نیوکلیئر ایران ہی ایک خطے کے امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے۔ ایک نان نیوکلیئر ایران جس سے نیوکلیئر ویپنائزڈ ایران نہ ہو۔ اچھا، اس لیے ایک چیز کو تو ہم طے کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اسی کو فلپ اگر کر دیں کہ کیا اسلام آباد تہران کو اسٹریٹجک نیسیسٹی تو نہیں میں کہوں گا لیکن اسٹریٹجک انداز میں ڈیل کر سکتا ہے؟ یعنی آج جو پلڑا ہے وہ تہران کا بھاری ہے یا اسلام آباد کا بھاری ہے؟ کیا اسلام آباد کو تہران کو لیڈ کرنا ہے یا تہران پاکستان کو لیڈ کرے گا، اسلام آباد کو لیڈ کرے گا؟ میری نظر کے اندر جو پاکستان نے کیا ہے، جو پاکستان کا تشخص ہے، جو پاکستان کی ساخت ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں، ایک بہت بڑا ملک ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، دنیا کے اندر لنکڈ ہے، اس کا اقتصادی جو اس کی اکانومی ہے وہ ایران سے بڑی ہے اس وقت، شاید اللہ کرے بڑی ہی رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو تمام چیزیں مل کے یہ جو ایک بنیاد بناتی ہیں کسی بھی ریاست کی طاقت کی، پاکستان اس وقت
बहुत बेहतर जगह पे खड़ा है, कौमी तशख़्ख़ुस पाकिस्तान का बेहतर तौर पे नमूदार और उजागर हुआ है। अब ये सब चीज़ें अगर सही हैं, जो कि सही हैं, हरगिज़ बिल्कुल सही हैं, तो फिर ईरान पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ईरान आया है, अब यहाँ से पहला काम कि जो ईरान का जो अमन है, इस खत्ते का जो अमन है, उसको मुस्तहकम किया जाए। ईरान को हमें उस तरह गाइड करना है, उस रास्ते पे लेके चलना है, उस तरीके से उसकी मदद करनी है कि उस तरफ उसको कोई जो इनसिक्योरिटीज हैं उनके अंदर कम से कम तर उसकी कमी की जाए और वो एक कॉन्फिडेंट मुल्क के तौर पे अमन की तरफ जाए। नंबर 2, जब ये अमन कायम हो जाता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को अपनी इस हैसियत को इस्तेमाल करते हुए, जहां पर मशरिक़ वस्ता के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान और मशरिक़ वस्ता के बीच में भी जो मुश्किलात हैं, जो फासले हैं, उनको कम करना चाहिए और इसको एक इक़्तिसादी पहलू के तौर पे ताकत को ऊपर लेके आना है। ये पाकिस्तान का दूसरा काम होना चाहिए। जब ये हो जाता है और ईरान थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो कि अपने आप को फिर रीस्टैब्लिश करता है, दुनिया में लिंक होता है, एक इकॉनमी तेजी से उभरती है, तो मेरा ख्याल है ईरान का अपना तशख़्ख़ुस और कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलके वो दीवार बनते हैं जो कि इसराइल के रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें कि पाकिस्तान और ईरान मिलके अगर आगे चलें, और ये मौका, मैं इस चीज का एक नहीं कहता कि कौन पाकिस्तान को क्या कोई रास्ते दिखा सकता है। अब पाकिस्तान को जिस जगह पे पाकिस्तान पहुंचा है, स्टेप पीछे नहीं लेना, आगे ही चलना है, लीड करना है, इस खत्ते को लीड करना है, चाइना को बीच में लेके आना है। तो मेरा ख्याल है वो तमाम चीजें हैं जो कि रास्ते बना देंगी इस पूरे खत्ते को एक नुमाया दुनिया का खिता बनाने में और एक अमन का खिता बनाने में। मेरा ख्याल है अगर इस तरीके से देखा जाए, सोचा जाए, तो पाकिस्तान की जो जरूरत है, स्ट्रेटेजिक जरूरत जो है, वो ज्यादा अहमियत होती है और पाकिस्तान उसको लीड करेगा तेहरान के लिए। तो तेहरान शहजाद साहब इसी गुफ्तगू में थोड़ा सा ये ऐड कीजिएगा, जब आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी कीमती और यूनिक हेल्प रही जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इस पूरे सिचुएशन को लेके चला, मगर जब यहाँ से आगे की बात करते हैं तो अभी तो पहला इब्तदाई एक 60 दिन का टाइम है जिसके अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉर्ट होना है हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए। क्या ये 60 दिन पाकिस्तान को ये भी याद दहानी कराने को तेहरान इस्लामाबाद में है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 3 महीने गुजरे, पाकिस्तान ने भरपूर मदद के तौर पर चीज़ों को बार बार हाथ से फिसलते हुए वापस संभाला, ईरान को वापस मेज पर बिठाया या अमेरिका को बिठाया, अगले 60 दिन भी वही भरपूर मदद पाकिस्तान की बतौर उस सालिस या उस साथ के दरकार रहेगी कि कहीं डीरेल ना हो जाए चीजें? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जिस किस्म का ताल्लुक है अमेरिका के साथ, जिस किस्म का ताल्लुक है मशरिक़ वस्ता के साथ और चीन के साथ और अब ईरान के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं, इतने लिंकेजेस हैं, ऐसे लेवरेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान ये इंश्योर कर सकता है कि ये मोर और लेस अपने रास्ते पे चलता रहे। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद की जो मामलात हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर ये कर देगा तो इसमें ये पाकिस्तान किसी और के लिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान अपने लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर ये खिता पुरअमन होता है, इक्तिसादी बुनियादों के ऊपर फिर आगे बढ़ता है, तो फिर उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे पहलू हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी बेहतर किया जा सकता है, पाकिस्तान की माशी सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान का सिर्फ ये 60 दिन का काम नहीं है, इसके बाद 60 दिन का तो है ही है, लेकिन इसके बाद का जो काम है वो भी उतना ही है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, जंग के शोले बुझते ईरानी सदर पाकिस्तान आए हैं, हालांकि हालात तो अभी ईरान में भी बहुत नाजुक है, मगर उन्होंने पहला फैसला पाकिस्तान की मेज़बानी को कबूल करने का किया। इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हुई वो दस्तखत हो चुके, टेक्निकल कमेटीज बैठ गई हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ईरान इस वक्त में इस्लामाबाद से ऐसा क्या चाह रहा है जो दुनिया के बड़े दारुल हुकूमत देने की पोजीशन में ना हो और तेहरान ने अपनी मौजूदगी इस्लामाबाद में जरूरी समझी? आयशा, सबसे पहले ये कि ईरान क्या कह रहा है इस दौरे के बारे में, ये बहुत ही अहम बात है। अलामतें बहुत अहम होती हैं, इस दौरे की अलामत बहुत अहम है। ईरान के सदर का दफ्तर ये कह रहा है कि ईरानी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी रिकग्निशन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कोशिशों की, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबियों की क्या हो सकती है कि इतना अहम मुल्क का सदर खुद दौरा करके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आ रहा है। कम से कम अलामती तौर पर तो यही बात है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है जो ईरान ने की है। और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सिर्फ 2.5 साल पहले जनवरी 2024 में जब पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए थे, तो हम आज के दिन का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतने जल्दी पाकिस्तान और ईरान इतने करीब आ जाएंगे कि 1979 के बाद कभी भी इतने करीब नहीं थे, इनकलाब ईरान के बाद इतने करीब नहीं थे। ईरान को पाकिस्तान से जो बड़ी शिकायत थी
बहुत बड़ी शिकायत थी, वो ये थी कि पाकिस्तान अमेरिका और अरबों के बहुत करीब है। आज आप देखिए कि पाकिस्तान के अमेरिका और अरबों से ताल्लुकात फायदा ईरान को खुद ईरान का सबसे बड़ा असेट बन गए हैं, सरमाया बन गए हैं। एक ऐसा सरमाया बन गए हैं जिससे ईरान के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, उसको जंग से निजात मिल रही है, उसके लिए तरक्की का रास्ता खुल रहा है। अब अलामत से अगर हम आगे बढ़ें तो कम से कम 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान के लिए बहुत अहम है, जिसमें पाकिस्तान कुछ कर सकता है। सबसे पहली बात कि जो मेमोरेंडम अभी साइन हुआ है, इस MOU का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस MOU में जो वादे किए गए हैं वो चीज़ें दिलवानी हैं, और उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत है ईरान को। और हमने देखा है कि इतने थोड़े से वक्त में बहुत सी चीज़ें ईरान को मिलना शुरू हो गई हैं उस MOU की वजह से। दूसरी बात, ये जो 60 दिन का प्रोसेस शुरू हुआ है, उसका भी पाकिस्तान बहुत अहम मीडिएटर है। 2 मीडिएटर हैं और लीडिंग मीडिएटर पाकिस्तान है, कतर भी है। उसमें भी सदर ईरान ने पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, क्योंकि अगर देरपा अमन चाहिए, और ज़ाहिर है ईरान को चाहिए, अब ईरान इस माशी बहरान से निकलना चाहता है, इस आइसोलेशन से निकलना चाहता है, तो फिर 60 दिन में हल निकालना होगा। और ईरान की ख्वाहिश होगी कि इस 60 दिन के जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सके, और उसके लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। जैसे उसको एक शानदार MOU मिला, उस तरह एक शानदार मुआहदा मिल सके, और उस मुआहदे में पाकिस्तान का भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी नए अमकानात खुलेंगे। और इस मुआहदे में पाकिस्तान, देखिए फिर वही बात है कि पाकिस्तान एक ब्रिज है। जो कुछ ईरान ने कहना है अरबों के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, किसी मुआहदे की तरफ जाना है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो ख़ित्ते की एक नई सूरत हाल इमर्ज कर हो रही है, जो एक सिक्योरिटी की नई सूरत हाल इमर्ज हो रही है, उसमें पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क बन के उभरा है। यानी जो मिडल ईस्ट का रीजन है उसकी सिक्योरिटी में, और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ, मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ मिलकर जो ग्रुप बनाया है, उसके साथ ताल्लुकात भी अब ईरान के लिए बहुत अहम है। उस पर भी यकीनन वो बात करेंगे। और आखिरी और बहुत अहम बात जो हमारे लिए सबसे अहम है, वो है इन दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात, जहाँ से बात जियो पॉलिटिक्स से जियो स्ट्रेटजी में जाएगी। पाकिस्तान को तो बेनिफिट तब मिलेगा ना जब ये सब ताल्लुकात तिजारती ताल्लुकात में कन्वर्ट हों। ये जो मोहब्बत, ये जो दोस्ती पैदा हुई है, ये पाकिस्तान के फ़ायदे की तरफ जाए। ठीक इस तरीके से हम ट्रेड की तरफ जाएं। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो शकूक व शुबहात हमें नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से हैं, टेररिज्म की वजह से हैं, उस पर बड़ी खुली डुली बात होनी चाहिए, और उस पर चीज़ें तय होनी चाहिए कि जो दहशतगर्द उन एरियाज़ में एक्टिव हैं जहाँ पे दोनों मुल्कों का बॉर्डर है, और अफ़गानिस्तान में एक्टिव हैं, उन पर बाकायदा मुआहदा और तय होना चाहिए, और इन दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए अपने फ़ायदे में। दोनों का बहुत फ़ायदा है जी। और दूसरी बात कि तिजारत के लिए अब तिजारत को आगे बढ़ाना चाहिए। गुज़श्ता साल जब सदर पेज़ेश्कियान आए थे पाकिस्तान में, तो दोनों मुल्कों ने ये कमिट किया था कि वो तिजारत को $10 बिलियन तक लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे, अब उस पर बात होनी चाहिए। बहुत अमकानात हैं एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, दूसरे प्रोडक्ट्स में। अब अगर ईरान तरक्की के नए सफ़र की तरफ जाता है तो उसमें भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कंपनियों के लिए, पाकिस्तान के हुनरमंदों के लिए बहुत मौके होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक नए सफ़र की इब्तदा है, बहुत खुशगवार इब्तदा है। दुरुस्त हो गया। ईरान के साथ पाकिस्तान के 1000 साल के ताल्लुकात हैं जिन पर हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है।